Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mawa. Again, welcome to all of you this online session. Today we will discuss about some numerals again because already we started into the last lecture. So that is all the numerals. Already I provided this thing in before. Already we discussed this into the previous lectures, so this table is very important. I hope that everyone has put it in your fair book also, because this table, that is from your supplementary book number 10, and supplementary book के page number 10 SB 10 के ऊपर, that is the page number here given, that 14. So 14 page, that is very important for the both of the table, because it's one kind of special number that already I discussed into the previous lecture. So this table is very important. So you can also, if you have not write into your fair book, so you can also put in your fair book. So easily, whenever you have to required or ask some questions related with the numbers with the Roman numerals, that time it will very helpful to you. So this both things you have to write down in your fair book. So today we just go for the practice question 1. This is the last points that we discussed into this chapter, because already we started the first chapter of this unit number 1, and that is the knowing our numbers. So in the practice question 1, there are three questions here given, that write the following numbers in Roman numerals: 87, 105 and 71. How to represent it into the question? So let us move on to solve this as a practice question 1. So you can also write down in your fair book. So it will also be helpful to how to write whenever it gives us to in Arabic numbers, and if we want to convert into the Roman numerals, that time it will very easy for you. So for that reference you have to use both of the tables that is given into the SB10 page number 14 of your supplementary book. So let us move on it. So how to solve it? First, in the practice question 1, if we have to represent 87 Arabic number into L X X X, matlab we have to use here that Roman. Then first we have to using that 87. So 87, how can we represent it? First we have to represent the 50. Then we have to use for the two things 30. So obviously 50 is for the L, because of 87 को हम कैसे expand करते हैं? 87 को हम represent करते हैं 50 plus we have to use the 30 and then we are using 7. So all these three, for the first 50 we have to write in the Roman, that is L. फिर 30 का मतलब 3x को, क्योंकि 1 2 and 3, that is also be represent with the 10, and then after 7, so obviously we have to write like that 7. So these are the all the representation of 87. कैसे 87 को रिप्रेजेंट करना है, मैंने लास्ट टाइम रूल्स और पैटर्न्स आपको बताई थी, उसी तरह से ही आपको रिप्रेजेंट करना है. सेकंड वन सीवी है, सो ऑब्वियसली 105 नंबर है. 105 नंबर जब भी होगा तो पहले हम उसका एक्सपांडेशन फॉर्म करेंगे 105. सो 100 का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सी or capital C, or for the 5 we have to write the V. So that is the representation of 105 is there. Similar way into 71,
we have to represent here 70. So first we have to use here, the first things is 50 plus 20 and then plus 1 is there. So 50 plus 20 plus 1. So obviously we have to write for the 50, that is L. 20 के लिए हम 210 लिखेंगे x एंड 1 के लिए हम लिखेंगे 1. तो ऐसे हो गया हमारा L x x I, that is for the 71. So it's a very easy practice question 1, only 3 here given. इस तरह से कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, you have to combine with the special character. स्पेशल कैरेक्टर जो आपको अभी मैंने टेबल पे दिखाया, उस टेबल में से आप देख सकते हैं 100 का है, 200 का है, 500 का है, 1000 का है, कहीं से भी कोई भी नंबर आपको रोमन न्यूमरल्स में पूछा जाए तो आप इजीली उसको कर सकते. तो उसके लिए आपको ये दोनों टेबल जो है स्पेशल कैरेक्टर वाले, वो दोनों टेबल है वो अच्छी तरह से याद रखना है. So let us move on to the next. So conclusion of this chapter particular with this practice question. So let us move on to the next point. So let us move on to the some used of the international and Indian systems of the numeration. Just we have to take it because already we discussed into the previous part. So first, do you remember the Indian and international system of the numeration? Obviously, because we have to using vast exercise or vast practice on this both of the system. So international system क्या है और Indian system क्या है, that we already know. Indian systems already it is covered into the first part, and the international system put it into the downside. We know that it starts from here: ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, and 10 crore. That is the Indian system. That is into the different periods or places. 3 place, फिर बाद में 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे 3 places, 2 places, 2 places and 2 places. That is for the Indian system. Similar way for the international system. First start from the left right side: ones, tens, 100, 3 places, 3 places and 3 places. That all are the 3 places into the international system of the numeration. So Indian system of the numeration and international system of the numeration, that we already knowing about it. So let us move on that points. Suppose if we want to put the largest number and smallest possible number using the digit 5, 3, 6 and 2. So obviously अभी हमें ये सब कुछ आता है because of we already knowing about that. So 5362 उसमें से लार्जेस्ट नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है लार्जेस्ट नंबर में वो होगा 6. इसमें आप देख सकते हो 6, 5, then 3, then 2. So that is a one largest number we have to form using this all the numbers. Similar way, make the largest and the smallest possible number using the digit 5, 3, 6 and 2. तो largest तो बन जाता है 6, 5, 3, 2. यदि हमें smallest बनाना है तो 2, 3, then 5 and 6. So that is the smallest possible number for using these 4 digits. तो एक चीज भी हम सीख चुके हैं बिकॉज जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी डिजिट को हम कंसीडर करेंगे पहले प्लेस पे, then second so on. So जब भी लार्जेस्ट बनाएंगे तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट यूज करेंगे. यदि हम स्मॉलेस्ट नंबर यूज करेंगे तब सबसे स्मॉल जो नंबर है उससे हम बड़े नंबर की ओर जाएंगे. तो ये हुआ आपका ये पोर्शन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसके लिए हमने एक चीज याद रखी: टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर अरेंज द डिजिट इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको ये पूरी डिजिट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है. यदि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपको फाइंड करना है देन यू हैव टू यूज द अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो इसी तरीके से हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर अभी मैंने आपको बताया वैसे कंसिडर कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी इजी थिंग बिकॉज इट्स जस्ट रिव्यू ऑफ वॉट एवर वी प्रीवियस लर्न. नाउ राउंड ऑफ. बाद में हमने एक चीज सीखी थी, राउंड ऑफ टू द हाईएस्ट प्लेस.
So round off 17524 to the nearest 10,000. अब नियरेस्ट 10,000 में राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करते थे, उसी चीज को हम देख लेते हैं कि फाइंड द हाईएस्ट प्लेस 17524, उसमें पहले हाईएस्ट प्लेस है वो 1 है, उसके बाद वाली डिजिट यदि 5 से ज़्यादा है, मतलब 7 है यहाँ पे सेकंड, तो फाइंड द डिजिट नेक्स्ट टू द हाईएस्ट प्लेस, हाईएस्ट प्लेस के बाद यदि डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करना है राउंड ऑफ में, अप्लाई द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, लाइक डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सो एड 1 टू द हाईएस्ट प्लेस। सो हाईएस्ट प्लेस में हम क्या करेंगे, आगे जो हाईएस्ट प्लेस हमारा है 1, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड 1 डिजिट है नेक्स्ट टू द हाईएस्ट प्लेस डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होता है तो उसमें 2 रूल्स हम यूज करेंगे, एड 1 एट द हाईएस्ट प्लेस एंड अदर प्लेस बिकम्स 0, मतलब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, 1 में एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, बाकी सब हम 0 पुट कर देंगे। समझ में आ गया? दैट इज द राउंड ऑफ नंबर ऑफ 17,524, उसका राउंड ऑफ होगा 20,000। सो दैट इज इजी थिंग्स दैट वी learn well into the rounding off to the highest place number. Similar way, same way we are using for that 20,000। तो ये चीज़ भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसके लिए जो भी स्टेप थे वो स्टेप ये जस्ट आप रिकॉल कर लो फिर से, क्योंकि क्या क्या चीज़ हम सीख चुके हैं दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। तो ये हुआ था, इतनी चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट। Now we go for the one group practice, whatever we learned at the previous part, just we check it out. Here it starts from the NCERT try page, try this page number 11 से हमने accept all suitable answers आप कर सकते हो, कोई भी numbers आप उसमें use कर सकते हो। So suppose if you have the following digit 4, 5, 6, 0, 7 and 8, using them make 5 numbers each with 6 digit। तो आपको 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, इसके लिए आपको कौन सी डिजिट यूज करनी है, 4, 5, 6, 0, 7 एंड 8, इतनी डिजिट आपके पास है ही, उसी डिजिट को आप यूज करके 6 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। सो पुट कॉमास फॉर ईच because of when you read it very easy। so 4, 5, 6, 7, 0, 8 एक ऐसा नंबर बन सकता है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 0 बन सकता है, 4, 5, 6, 8, 7, 0 बन सकता है, 4, 5, 8 that we have to using 6, 7, 0 and 4, 8, 5, 6, 7, 0। तो इस तरीके से 4, 8, 5, 4, 5, 8, 4, 5, 6, 4, 5, 6 एंड 4, 5, 6, इस तरीके से 6 डिजिट्स के नंबर्स आप बना सकते हो। सेकेंड वन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सभी को आफ्टर पुटिंग द कॉमास फॉर इजी रीडिंग वी हैव टू पुट इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे और लार्जेस्ट की ओर जाएंगे। तो ये जो पूरा नंबर की सीक्वेंस हमने बनाई अभी, उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 0, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8, 7, 0, 4, 5, 8, 6, 7, 0 and 4, 8, 5, 6, 7, 0, that all are into already in ascending order but we put into the ascending order। सिमिलर वे वी हैव टू गो फॉर द सेकंड वन, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि किसी भी नंबर्स को आपको अरेंज करना होता है तो दोनों तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में भी करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी करोगे आप तो बड़े नंबर से आप स्टार्ट करोगे और छोटे नंबर की ओर जाओगे, तो दैट वे वी हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ। तो हमने जो भी 5 नंबर फॉर्म किए हैं 6 डिजिट के यूजिंग दिस ऑल डिजिट्स, दैट वी हैव टू अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ। नेक्स्ट वन, टेक द डिजिट 4, 5, 6, 7, 8 and 9, मेक एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स। अब हमें कितने नंबर्स बनाने हैं, इसी डिजिट का यूज करके हमें और 3 नंबर्स बनाने हैं।
तो जो भी नंबर्स पॉसिबल है वो पॉसिबल हम नंबर यहाँ पे बनाएंगे 4 5 6 7 8 सो एंड 9। सो 4 5 6 अगेन 6 7 8 8 9, क्योंकि हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमें 8 डिजिट कैसे यूज होती है, जस्ट वी हैव टू चेक। तो इसी डिजिट्स का यूज करके आपको 8 डिजिट का नंबर्स पॉसिबली जितना बनता है इतना आप बना सकते हो। तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू फॉर्म हियर, 3। तो 3 नंबर्स हम यहाँ पे बना सकते। थर्ड क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द डिजिट 3 0 एंड 4 मेक 5 नंबर्स। 3 0 4 का यूज करके ऐसे 5 नंबर्स बनाए जो 6 डिजिट का हो। तो 3 4 0 ट्रिपल 0, 4 3 0 ट्रिपल 0, 4 0 3 ट्रिपल 0, 3 0 4 ट्रिपल 0 एंड 4 3 0 300। इतने नंबर्स हम 3 डिजिट का यूज करके 6 डिजिट का नंबर हम बना सकते हैं। आप देख सकते हो सभी 6 डिजिट के। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 डिजिट के नंबर बनाए, हमारे पास थे कितने डिजिट, 6। तो हम रिपीट उसका यूज कर सकते हैं, बट हमें किसी भी तरह से 8 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। आप अपने आप भी नंबर बना सकते हो, एक्सेप्ट ऑल द सुटेबल आंसर। मतलब मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ, वैसे ही 3 नंबर नहीं बनते, आप अपने आप बनाएंगे तो और भी नंबर बन सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हुआ था एनसीईआरटी पेज नंबर 11। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एनसीईआरटी ट्राई दिस पेज नंबर 20 के। जो नंबर है वो गिवन है आपको, राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10। मतलब आपको एक नंबर गिवन है 75847, अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट टेंस। आपको टेंस के ऊपर उसको नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन करना है, राउंडेड फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 75850, क्योंकि 4 7 है वो राउंड ऑफ में हम टेंस की पोजीशन पे लेंगे। तो टेंस की पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा नंबर है आप देख सकते हैं, कौन सा डिजिट है, 45847 का मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हाँ, टेंस की पोजीशन पे क्या है, 4 है। तो 4 के बाद क्या चीज यहाँ पे इंडिकेट्स हो रही है, 7 हो रही है ना। 4 के बाद 1 की पोजीशन क्या है, 7 है। तो हम क्या करते थे राउंड ऑफ में, जो भी हाईएस्ट प्लेस यानी टेंस के प्लेस पे 4 है तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो 5 हो जाएगा, और बाकी सब उसके बाद वाली डिजिट 0 हो जाएगी। मतलब 758 4 की जगह पे अब 5 हो जाएगा और रिमेन्स क्या हो जाएगा, 0। तो आपका हो जाएगा 75850। समझ में आ गया? तो अब ये 47 निकल जाएगा और उसका राउंड ऑफ क्या होगा, 50। सिमिलर वे 100 की प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे और 10,000 की प्लेस पे हम कर सकते हैं। सेकंड वन है 75847। तो अब 75847 है तो ऑब्वियसली उसके प्लेस कौन सी है, 100। तो हम उसका भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, 75847। तो अब 100 की प्लेस है मतलब 8 को कंसीडर करना। 8 के बाद वाला देखिए आप 4 है तो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और ऐसे ही वो नंबर रखेंगे। मतलब हमारा नंबर क्या होगा, 75। अब 8 के बाद यदि 5 से ज़्यादा होता तो हम 8 में एक ऐड कर देते, बट यहाँ पे 8 में कुछ भी ऐड नहीं होता, वो एज इट इज़ रहेगा और बाकी के जो डिजिट है वो 0 रख देंगे। तो इसका पोर्शन है राउंडेड ऑफ क्या होगा, 75,800। सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर द 1000 एंड 10,000। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी ये चीज सीख चुकी है, दैट इज फॉर ओनली प्रैक्टिस। नाउ 1.3 में और भी चीज पेज नंबर 23 में दिया गया है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल से आप अप्रोक्सीमेट कीजिए, उसको एस्टिमेट कीजिए कि 730 प्लस 998। तो 730 का पहले आप राउंड ऑफ करेंगे, तो जनरल रूल इज राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू ग्रेटेस्ट प्लेस। तो 730 है, उसका राउंड ऑफ आप जब भी करेंगे तब क्या होगा,
तो जनरल रूल में जब हम यूज करेंगे तब हम कैसे यूज करेंगे? 7300 मतलब हाईएस्ट प्लेस के बाद वाला 5 से छोटा है यानी 3 है, तो 3 को आगे का जो हाईएस्ट प्लेस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही लिखेंगे, और बाकी सब है दोनों डिजिट की जगह पे 0 लिख देंगे। तो 730 का राउंड ऑफ होता है 700, और 998 का जनरल रूल हम यूज करेंगे। तो 998 में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट प्लेस के बाद वाली डिजिट 9 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। तो 9 में क्या है, एक ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 10। बाकी जो 2 डिजिट है उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1000। तो इसी तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे तो 700 प्लस 1000 का टोटल क्या होगा? 1700. So that is a way to estimate these things. Similar way for the B, that is also be using for the subtraction. So 796 का estimation होगा 800, और 314 का estimation होगा 300 as per the general rule of the rounding off। जो ऑलरेडी मैंने अभी एडिशन में दिखाया वही आपको सब्ट्रैक्शन में करना है, और उसी तरीके से आप दोनों के नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपका आंसर आता है 500। वैसे ही 1.3 का सी 12,904 प्लस 2,888, दोनों का भी राउंड ऑफ आप करेंगे। ये चीज़ भी इजी है। तो जितनी चीज़ मैं आज बता रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, सभी आप उसको आज के होमवर्क में रफ बुक में करना है, ये याद रखना। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इनटू द today's homework. So A, B, C from the NCERT, all the questions you have to write for the exercise 1.3. Similar way we are going for the next one, that is D. So that is also be very easy things, because we have to using here for the estimation using with general rules. So that things also be using for the exercise 1.3. Now we also using some of the rules for estimating each of the following using general rule. Make 10 more such example of addition, subtraction and estimation of their outcome. तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों पांच एग्जाम्पल है, वो भी आज आपको अपने यदि आप उसको प्रैक्टिस के लिए फेयर बुक में लिख देते तो फेयर बुक में लिख के भी वही चीज़ आज होमवर्क में सेंड करनी। तो जो भी चीज़ मैं आज आपको रिव्यू में बता रहा हूँ शुरू से इस वीडियो में, वो सभी चीज़ आपको अपनी फेयर बुक में लिख के यू हैव टू सेंड मी एज टुडेज होमवर्क। इज इट क्लियर? तो ये हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 23 का सॉल्यूशन। वैसे ही ये सब एग्जाम्पल्स, कितने एग्जाम्पल है? 6, 7, 8, 9 एंड 10, टोटल 10 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और 10 एग्जाम्पल्स आपको कवर करने हैं। देन आफ्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 23 के ऊपर ये जो क्वेश्चंस है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100 एंड अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट टेंस। तो 439 है प्लस 334, 4317, ये सभी चीज को आप राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100 करेंगे एंड राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट टेंस करेंगे। मतलब आपको पहले टोटल करना है, बाद में उसको राउंड ऑफ करना है 100 की प्लेस पे, एंड देन आफ्टर वी हैव टू यूजिंग फॉर द नियरेस्ट टेंस। तो ये चीज भी आपको अपने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस में यूज करनी है। देन 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का डी जो पोर्शन है, वो जैसे कि ABC आगे देखे क्वेश्चन नंबर 2 में, वो ही चीज आप ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल से ही आप प्रोडक्ट कीजिए। 578 इंटू 161, तो क्यों 1,20,001, ये पूरे आंसर तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है ही, बट जस्ट यू परफॉर्म्ड एज ए प्रैक्टिस। देन
we have to go for the one particular numbers, that is a word problem. A bus started its journey and reached a different place with a speed of 16 km per hour. The journey is shown on page number 40. So find the total distance covered by the bus from A to D. तो कितना distance है, that is covered from this NCERT question. So it is available on NCERT book. But if you haven't that, that's why you have to write this solution from this video. Okay. So this is page number 13, and पेज नंबर 13 का एक थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 एंड 4. ऑल 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन इज गिवन ओवर हियर. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस पेज नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी. तो आज का जो टोटल था वो सभी चीज यहाँ पे इसी वीडियोस में अवेलेबल है. जस्ट पूरा जो राउंडिंग ऑफ था, इंटरनेशनल सिस्टम, number systems over there, and international and Indian systems are there. How to rounding off of the highest place value कैसे करते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड लास्ट वन वी हैव टू यूज द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. तो पहली जो आज की एक्सरसाइज थी होमवर्क में, वो थी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, दैट इज अवेलेबल ऑन योर पेज नंबर 14. तो वो भी पहले होमवर्क में करना है, डायरेक्टली आपको फेयर बुक में लिख के. बाकी वहां से जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए आपको, सभी क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर बुक में लिख के यही होमवर्क में सेंड करना है. समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो टू एंड ऑफ दिस वीडियो, मतलब शुरू से लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सेंड करना है. इज इट क्लियर? तो आज आपका पूरा रिव्यू हो गया. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर्स फॉर इट. So be careful about it and do more practice. That's why I provided number of questions from the NCERT. You can also write all the questions into the fair book. So today's homework is थोड़ा ज़्यादा है, but you have to work hard on it. So I hope you understood well what I am telling. And if you are having any kind of the queries, you just ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.